Namaskar to all. Now we are going to start the chapter first, rational number. So this is the summary of the chapter first. So in this chapter you have learned the whole number, natural number, integer and rational number. So the whole number are those numbers those start from 0 and goes through the infinite. And now the natural number starts from 1 and goes through the infinite. The third is integer. Integer is the combination of whole numbers, natural numbers, plus and minus. So all these numbers -4, -3, 1, 0 all are called the integers. The next is, in this class we have studied the rational number. The number which can be expressed in the form of P upon Q, where Q not equal to 0 means I have write the example here 3, 7, -5, 2 upon 5, 6. So these all are called the rational number. Then what is the rational number? That you have write like this 3 upon 1. Okay, so the value of 3 cannot be changed because we are dividing 3 by 1. So all these numbers which can be written in this form are called a rational number. This is also a rational number. But if you write like this, then it is not a rational number because condition is that Q not equal to 0 means denominator is not equal to 0. So this is not a rational number. So these are the things that you have learned the chapter rational number. Now we are discussing the chapter 2 linear equation in one variable. Here I am going to tell you the summary of this chapter. So the name is linear equation in one variable. Then I will tell you first expression about equation and linear equation. Then पिछले क्लास में आपने पढ़ा कि एक्सप्रेशन क्या होता है. तो यहाँ पर आप देखते हैं ये जो है ये क्या है, एक्सप्रेशन है. और अगर मैं इसमें इक्वल्स टू साइन का यूज कर लेता हूं तो ये एक इक्वेशन बन जाता है. तो ये डिफरेंस होता है एक्सप्रेशन में और इक्वेशंस में. इक्वेशंस से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इक्वल्स टू का साइन यहाँ पर यूज किया गया है. सो वी कैन से दैट इट इज द इक्वेशन. Now we are talking about the linear equation. What is linear equation? So now let's see the equation x plus 2 equals to 0. So this is the equation also. And now I am writing another equation. This is also an equation. But difference between equation and linear equation is that कि linear equation में पावर जो है 1 होनी चाहिए, इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए. यहां पर आप देखिए कि जो वेरिएबल है उसका पावर जो है कितना है, 2 है. ठीक है ना. और लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, उसकी जो वेरिएबल है उसकी पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. ठीक है, इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए. यहां पर लेकिन हम देख रहे हैं कि जो पावर है वो कितनी है, 2 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. अब आपको मैं बता रहा हूं कि ये वन साइड हो सकता है और दोनों साइड भी हो सकता है, बोथ साइड में भी हो सकता है. देखिए यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 3x प्लस 5. अब आगे की बात आती है लीनियर इक्वेशन. आपको समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर 1 होना चाहिए और इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए. अब इन्होंने कहा वन वेरिएबल से मतलब है कि इसमें जो अल्फाबेट लेंगे आप वो केवल एक ही होना चाहिए. जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं x प्लस 2 इक्वल टू 3x प्लस 5. ये इक्वेशन तो है, बोथ साइड है, लेकिन इसमें वेरिएबल है, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है. तो ये जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाता है. अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं. Now I am going to tell you how to solve the linear equation. Then the two conditions you have to see in your linear equations: variable on one side and variable on both side. Means मैं आपको एक एग्जांपल लिख के सॉल्व करके बता रहा हूँ. x plus 2 equals to 5. ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं वेरिएबल एक साइड आ रहा है, दूसरी तरफ नहीं आ रहा है. यहाँ पर देखिए आप x plus 2 इक्वल टू 2x plus 5. यहां पर आप देख रहे हैं वेरिएबल दोनों साइड आ रहा है. तो
तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, मैं आपको जो सॉल्यूशन बता रहा हूं वो मैं ट्रांसपोजिंग मेथड से बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। सो नाउ x plus 2 is equal to 5. Now separating variables and number, ठीक है ना। तो x इक्वल टू, जब आप 2 को ट्रांसपोज करके राइट साइड में ले जाएंगे तो ये इसका साइन प्लस का चेंज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये 5 अपने प्लेस पर रखा हुआ है। जब ये ट्रांसपोज होकर इस तरफ जाएगा तो प्लस का था किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द वेरिएबल ऑन वन साइड। अब मैं आपको बता रहा हूं वेरिएबल ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड वेरिएबल्स हो तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। क्या करेंगे सबसे पहले, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो वेरिएबल्स की वैल्यू ज्यादा है उसकी तरफ कम वैल्यू वाला वेरिएबल को ट्रांसपोज करके ले जाना है। तो देखिए यहां पर ये आपको दिख रहा है 2x, ये यहां पर जो x है ट्रांसपोज करके राइट साइड जाएगा। अभी ये प्लस का है, इस तरफ जब ट्रांसपोज होके जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, इसलिए ये हो जाएगा x। 2 अपने प्लेस पर रखा हुआ है। जब माइनस इस तरफ ट्रांसपोज होके आएगा तो ये हो जाएगा, प्लस का था किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। 2 प्लस का था, प्लस का ही है। ये प्लस का ट्रांसपोज होकर लेफ्ट साइड में आएगा, इसका साइन चेंज होकर किसका हो गया, ये माइनस का 5 हो गया। अब आप जब माइनस करते हैं तो 2 माइनस 5, माइनस का नंबर ज्यादा है इसलिए माइनस का रिमेनिंग 3 बच जाएगा। यहां पर 2x माइनस x यानी 2x माइनस 1x, यानी आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। देन फाइनली आपका जो सॉल्यूशन है वो आता है x इक्वल टू -3। So these are the solution of the linear equations.